Today we will discuss expected risk. See, I have to speak loudly, so I'm not putting on my mask. All the other people, once you have your water, then you please put on your mask. Huh? All the students. I cannot because I have to speak loudly and I'm not comfortable. Okay, recording has been started. Okay, so in the last lecture we discussed expected return. Now we will be discussing expected risk. So, here we are discussing expected risk. For the same, we will be opening up our Excel. Okay, so this is the sum we, I guess, calculated yesterday. We understood expected return. We also discussed the Excel application. How would you have calculated it in the Excel, right? And this is the question, I guess, we calculated yesterday to calculate expected return. Not this one. Which was that? We calculated this, right? Yesterday. Yes, our return was 0.097625. All of you got this question? आपके पास ये calculate किया हुआ होगा ही आपकी book में, है ना? This question. We calculated expected return yesterday. This was the question. The state of market, probability, price, and cash dividend was given. We first of all calculate the actual return. Then, with the help of probability, we calculated expected return. How we calculate expected return? Sigma Ri Pi. Yani total of all the return multiplied to its probability, right? So we did all the return, we found all the 4 return, then we multiply it with each of its probability, and then we did some of the things. Now the next thing is expected risk. Now, see, it is same, right? It is the same way which we used to calculate it. जैसे कि अपने सब expected return जो calculate किया हुआ है आगे के sum में, right? आगे के sum में जो expected individual return calculate किया गया है, हम क्या करेंगे? उसका expected risk calculate करेंगे. यानी कि अगर expected return 7%, 7.75 होता है, 6% होता है, 1.6% होता है या 0.2% होता है, in that case what will the risk which we will be follow, right? Which risk will be which will be the risk can be there, right? So it is a future risk we are talking about कि अगर इतना रिटर्न होगा तो इतना रिस्क हो सकता है. ठीक है? तो what we will do is why it is not working? The charging, my laptop is not getting charged. No, this is not working. These plugs are not working. No, this is also not working. So first of all, make a table, 3-column table, return xi minus x bar and xi minus x bar square. Make the 3-column table. You have to do it, all of you. Those who are here, they'll have to.
Write down return, then calculate the x bar, then xi minus x bar, and then xi minus x bar is the square. Yes, the expected return which we calculated, that we have to do. I hope all of you are calculating it. It is there in the last previous question. It is there. Let me show the PPT, no? Wait. Is this the same, no? So, let me also calculate with you. Okay, guys, the first return, like if the economy is excellent, our return is 0.077. Oh, my screen is not visible. Okay, so expected return is 0.077, 0.063, minus 0.016, minus 0.026. ठीक है? Is that right? ये हमने expected return calculate किया ना? Right? Then find the average of it. What is the average of it? Tell me what is the average of all these four return? 0.02225. 45. Yeah, no, we will be writing 0.0245 only because we will get proper answer then, or 0.025. 4 hai to that will be converted in 5. Okay. Now, each of these expected return minus each of these expected x bar, right? So 0.077 minus 0.025. It is 0.049, if I'm not wrong. Is it 0.049? First one. No, bar minus xi minus x bar. 525. Okay. Ha, 77 and not 25. Yes. Then 0.063 minus 0.25. 25 plus 13. 35. 38. 0.038. 0.038. Those who are attending online, they will have to be very much, active. If you are not getting it, you please ask me in the chat box. Not visible. Yes, Abhi, I guess visible hai aapko PPT. Now, minus 0.016 minus 0.025. It will be 35, 36. Yes? Minus 0.036. No, ha. 0.00405. ये सही है? ये होगा 0.001. Next होगा 0.001. Is that clear? Is that right? Oh. What is this? Fourth one? हाँ, कितने 0.0? 0.05.
Guys, wait a minute. Average is 0.025. 0.0245. हाँ. So if we are taking 0.025 and this is minus 0.026, then don't you think the answer is something wrong? Minus 0.026 minus 0.20. Huh? 0.0245. Okay. ठीक है, चलो, तो ये दिस इज द राइट आंसर. ओनली वन आंसर इज इन द माइनस, राइट? हाँ, ओनली वन आंसर इज इन द माइनस, राइट? No, ma'am, last is minus. Okay. Now we have to do x bar for each of this. 0.0525 square. 0.0028. Yeah. Then 0.15. Then 0.16. Then 0.0505 square. 0.0505 square. Somebody from the online class? 0.0026. 26. Yeah. Okay. Now guys, listen. Once you all are done, you let me know. Don't do average of it. Average मत करना इस चीज की. इसकी एवरेज मत करना अभी. कुछ नहीं करना. Yes. मैम, Yes, tell me. ये एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया था ऐसे अपने को बाय डिफॉल्ट, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया, उसमें से ही रिस्क निकालना ऐसे दिया था क्वेश्चन में, हमने फाइंड किया. देखो, ये पूरा हमारा क्वेश्चन था. दिस वाज द क्वेश्चन. State of market was given, probability given, price given. Whenever you have to calculate expected risk or expected return, आपको probability दी होगी क्वेश्चन में. अगर आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दिख रही है तो आपको पता होगा कि दैट क्वेश्चन इज ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिस्क. इतना देके आपको बोला गया था ABCD 4 कैश डिविडेंड है, ये 4 कॉलम का क्वेश्चन था एंड यू वर सपोज टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिस्क. ठीक है, तो हमें दिया नहीं गया था, तो वी कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न. कैसे कैलकुलेट किया? ईच रिटर्न को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके हमने ईच ऑफ द पीरियड के लिए, ईच ऑफ द स्टेज ऑफ इकोनॉमी के लिए वी कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न. ठीक है, नाउ वी टुक दिस एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड रिस्क. तो आपको क्वेश्चन में समटाइम्स प्राइस दिया होगा तो आपको उससे रिटर्न, देन उससे एक्सपेक्टेड रिटर्न और फिर उससे एक्सपेक्टेड रिस्क कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है. अगर आपको सिंपल दिया होगा तो कैसे दिया होगा? प्रोबेबिलिटी दी होगी और उस पीरियड के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो समटाइम्स यू माइट बी गिवन दिस एज अ क्वेश्चन. या तो अगर आपको पहला वाला क्वेश्चन है तो आपको ये स्टेप करना है, फिर एक्सपेक्टेड रिस्क करना है, तो दो स्टेप में आपका आंसर होगा. अगर आपको डायरेक्टली यही दे दिया है कि दिस इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर दिस ईच ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी, देन आपको डायरेक्टली द थर्ड स्टेप में जाना है, एक्सपेक्टेड रिस्क वाला. आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर. ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसलिए वी हैड टू कैलकुलेट इट. एक्सपेक्टेड रिटर्न समटाइम्स आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑलरेडी दिया होगा, तो आपको वो पढ़ना होगा कि प्रोबेबिलिटी के साथ में आपको क्या दिया है. सिर्फ रिटर्न दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है कि प्राइस दिया है. ठीक है, ये हमने मास्टर सम जैसा किया है जिसमें सिर्फ प्राइस दिया था, जिसके बेस पे वी कैलकुलेटेड रिटर्न एंड जिसके बेस पे वी कैलकुलेटेड एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेड रिस्क. यस, इफ let me know if you are clear or not, then you tell me. Then हाँ मैम, जब रिटर्न दिया हो खाली तब उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं ऐसा, ताकि एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल जाए. हाँ, तो दूसरा चीज क्या आपने बोला था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया ऑलरेडी, तब क्या करें मैम? तो डायरेक्टली अपन ये स्टेज करेंगे xi माइनस x बार वाला. अगर ऑलरेडी हमें अपने को रिटर्न दिया गया है, कहाँ है? हाँ, अगर ऑलरेडी अपने को ये दिया गया है, राइट, ऑलरेडी अपने को ये दे दिया है क्वेश्चन में, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है,
तो हम डायरेक्ट एक्सपेक्टेड रिस्क कैलकुलेट करेंगे 4 कॉलम वाला टेबल बना के। उसमें हम एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखेंगे, फिर उसका एक्स बार ढूंढेंगे, फिर ईच इंडिविजुअल रिटर्न को उसके एवरेज रिटर्न से डिडक्ट करेंगे यानी डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर ईच ऑफ दिस जो आंसर आया उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से, तो वी विल गेट अवर आंसर। हाँ, एक इंडिविजुअल का मींस टोटल से ऐसे माइनस करना है, फिर वो एक्स वाई माइनस एक्स बार बन गया ऐसा। हाँ हाँ, देखो यहाँ पे क्या हमने क्या ये एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखा था, आई कैलकुलेटेड एक्स बार यानी कि एवरेज, फिर ईच इंडिविजुअल रिटर्न्स को इससे माइनस करते गए, जैसे कि 0.77 0.077 माइनस 0.025 इज इक्वल टू 0.525। ये क्या है, इंडिविजुअल रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न। फिर सेकेंड स्टेप होगा हमारा 0.063 माइनस 0.025, कहाँ है 025 एवरेज में, सो दिस रिटर्न माइनस एवरेज। द सेम वे माइनस ये भी है, जो भी है माइनस 0.016 माइनस 0.025, तो आंसर इज 0.0405। समझ रहे हो आप यश? हाँ मैम। फिर ईच ऑफ दिस फिगर का एक्स बार कैलकुलेट करना है, ये हम पिछले 5 लेक्चर से कर रहे हैं। आई डू नॉट नो वेयर योर मतलब why you were not understanding it, but कोई बात नहीं, अभी आप क्लियर हो आई गेस। हाँ मैम। है ना? हाँ मैम। श्योर हो आप हाँ क्लियर हो मैम। अभी? हाँ, तो अभी एक और कॉलम ऐड कीजिए यहाँ पे, द फोर्थ कॉलम कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अभी अपने को देखो, सिंपल एक बात समझ लो पहले गाइस, अगर वो सिंपल रिस्क होता यानी कि हिस्टोरिकल रिस्क होता तो हम क्या करते, इसका एवरेज ले लेते, नहीं एवरेज नहीं लेते, सम करते, डिवाइडेड बाय n-1 करते, जो भी आंसर आता उसका हम स्क्वायर रूट निकालते, तो वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता। नाउ एज दिस इज अवर एक्सपेक्टेड रिस्क, वी विल मल्टीप्लाई इट विद द प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि देखो ये 0.0028 डेविएशन होने के चांसेस है 0.75 और 0.25 वॉट एवर द प्रोबेबिलिटी इज, ये 0.0015 डेविएशन होने की प्रोबेबिलिटी ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो लिखेंगे और ईच ऑफ दिस फिगर को xi माइनस x बार का ईच ऑफ दिस फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी से। सो अभी हमें 2 कॉलम ऐड करनी है, एक प्रोबेबिलिटी की, एक ri multiply xi minus x bar multiply by its probability, right? So what will be the next thing? I hope we are not getting confused. Yes, Expected return, we are already considering the probability, then Yes. why take probability again? yes, we have to take the probability again because देखो ये expected return है ना, हमने expected return ये लिया है कि फ्यूचर में अगर मार्केट एक्सेलेंट करता है तो 0.077 रिटर्न मिलेगा। तो ये 4 प्रोबेबिलिटी इस चीज की है, ठीक है। अभी ये हमें मिला है कि अगर ये 0.077 रिटर्न होगा तो दिस विल बी अवर डेविएशन, अगर ये रिटर्न होगा तो दिस विल बी अवर डेविएशन, अगर 0.016 रिटर्न माइनस में जाएगा तो 0.0016 हमारा डेविएशन होगा। पर इसकी भी तो ये डेविएशन होने की भी तो प्रोबेबिलिटी है, तो वी विल बी मल्टीप्लाइंग दिस विथ इट्स प्रोबेबिलिटी एंड देन मेक अ सम ऑफ इट। उसके बाद हम एवरेज नहीं निकालेंगे, ठीक है। अदरवाइज व्हाट वी वुड हैव डिड इन द प्रीवियस हिस्टोरिकल सम, वी विल जस्ट टेक एवरेज, बट यहाँ पे एवरेज नहीं लेंगे, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से। ये यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया था प्रोबेबिलिटी से, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न था, ठीक है, तो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया था। पर अगर ये रिटर्न है तो ये डेविएशन है, पर इस डेविएशन की भी प्रोबेबिलिटी है, तो दैट्स व्हाई वी विल हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द प्रोबेबिलिटी and we are not dividing it by n because we are multiplying it with the probability। अगर हम नहीं करते तो हम divide by average करते हैं। आप समझ रहे हो? Your question is really very intelligent question, right? But then you have to understand this as well, this concept as well. If you can ask this question, you can understand this thing. ये अगर मार्केट अच्छा परफॉर्म करता है तो ये प्रोबेबिलिटी है कि 0.077 रिटर्न देगा, पर अगर 0.077 रिटर्न देगा तो एवरेज रिटर्न से उसका डेविएशन हो जाएगा 0.0028। तो ये इतना डेविएशन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ये भी फ्यूचर है और ये भी फ्यूचरिस्टिक है, दोनों चीजें ही फ्यूचरिस्टिक है।
So that's why we will be multiplying it with the probability. Once we will calculate this sum, मैं इसका आपको formula भी लिखाऊंगी कि कैसे calculate करना है, हमने कैसे derive किया. तो based on that, I guess you will be able to understand it properly. But we have to calculate, multiply it with two times with the probability. Expected return calculate करने के लिए और expected risk calculate करने के लिए. I hope you are clear. Or still you have a doubt? No, ma'am. Right? So write down the probability. What is the probability for the first 0.25? What is the probability? Can you please speak up? Or you do not know? 0.2545. This is the probability, right? Then probability question might be the 0.25, 0.45, 0.20. जो एक्सपेक्टेड रिस्क નું છે ને ટેબલ આખું 1 2 3 4 5 6 કોલમનું બનશે 6 કોલમ. પહેલી કોલમ પીરિયડની, બીજી કોલમ એક્સપેક્ટેડ રિટર્ન, ત્રીજું કોલમ x માઇનસ x બાર, ચોથું કોલમ x માઇનસ x બાર સ્ક્વેર, પાંચમું કોલમ પ્રોબેબિલિટી, સિક્સ્થ કોલમ પ્રોબેબિલિટી મલ્ટીપ્લાય બાય x માઇનસ x બાર સ્ક્વેર. That is column number 4 multiplied by column number 5. Please do multiply each of this probability with this thing. एक minute. First is 0. How many 0? 4 0? 3 0. 7. Okay. 0.000. Then it's 6 7 5. So we can add 7. So 0. Point how many 0? 0.000. Huh. Okay. Then 0.004. 0.004. 0.00125. Yes, we have to do. But wait for a minute. Meanwhile, let others calculate it. All of you are done? Then you let me know. Done? Can we have a sum of it? When waited 0.0018. ये क्या मिला अपने को? What is this? This is actually called variance, right? And then we will take square root of it. That will give us SD, that is standard deviation. 0.042, that is 4.2%. So we can expect 4.2% return, 4.2% risk in front of 2%, 2.5% return. मैं इसको percentage में convert करके बोल रही हूँ, है ना? If I convert this into percentage, it will be 4.25%. Yes. Anybody is having any doubt till the time? We will calculate few more sums of it, but
Yes. हाँ, you have to write the statement that return is this and risk is this. आप ऐसे आपका जब सम खत्म होता है ना, तो यहाँ पे you have to write expected return and expected risk. Okay? Then it. All of you are getting answer, those who are online present. Please confirm in the chat box, all of you, those who are online. Please confirm. Ishita, Viraj, good. Viraj, you are not online. Jay, good. Sagar, Dhruvi, Chandini, Vidya, Sneha. Sneha, I hope you are clear with the doubt which you had earlier. Sneha, you had a doubt, right? Okay, ready? Okay. So I just wanted to know from this. अभी ये देखो मैंने और एक एक्सेल सेट खुला हुआ है. ये रिटर्न और प्रोबेबिलिटी दी है. आपको एक्सपेक्टेड रिस्क कैलकुलेट करने को बोला है. आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे? x माइनस एक्स बार डायरेक्टली कर दोगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न तो फाइंड करना पड़ेगा ना पहले. यू विल हैव टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न. कैसे कैलकुलेट करोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न को? RI मल्टीप्लाई बाई PI, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाई ईच ऑफ दिस रिटर्न. तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न मिलेगा. उस एक्सपेक्टेड रिटर्न और प्रोबेबिलिटी को लेके आप क्या करोगे? आपका एक्सपेक्टेड रिस्क कैलकुलेट करोगे. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं हम? एक्सपेक्टेड रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं. क्योंकि देखो एक्सपेक्टेड रिस्क यानी कि आपको पता है कि ये जो स्टॉक है, ये जो सिक्योरिटी, इसकी थ्योरी में समझा रही हूं आपको. ये जो स्टॉक है या सिक्योरिटी है वो 5% रिटर्न देगा अगर मार्केट अच्छा रहा तो. हम नहीं बोलते कभी कभी कि ये अभी स्टॉक मैंने लिया है 60 रुपीज का लिया है. ठीक है, हो सकता है कि वो 70 हो जाएगा अगर अब जाएगा मार्केट. 65 पे भी रुक सकता है, 55 भी हो जाएगा अगर कोरोना की सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव आ गया तो. राइट, तो ये सब उसकी प्रोबेबिलिटी है ना. 65 हो सकता है, 70 हो सकता है, 55 हो सकता है, 60 भी रह सकता है. तो मैंने लिख दिया कि इतना 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 हो सकता है. अच्छा, फोर्थ वेव आने के चांसेस कितने हैं? बोले कि अभी तो 30% ही है, क्योंकि 20% ही कंसीडर करो क्योंकि कोरोना की वैक्सीन आ गई है तो मोस्ट ऑफ द रिस्क हैज बीन गोन नाउ. तो मैं उसके सामने लिख दूंगी 20% प्रोबेबिलिटी कि मार्केट की प्राइस होगी 55. ठीक है. अच्छा, मार्केट अच्छा जाएगा, 65% अच्छा बजट आया है और इस बार बारिश भी अच्छी हुई तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होने वाला है. तो 50% चांसेस है कि वो 60 से 65 हो जाएगा. और 70 होने के सिर्फ 5% चांसेस है और 60 रहे उस सब पे 50% चांसेस है. तो अपने हिसाब से अपने प्रोबेबिलिटी भी डिसाइड कर ली है ना. तो या तो प्राइस होगा 55, 60, 65, 70, कुछ चार में से कुछ भी हो सकता है ना. तो हम क्या कर रहे हैं? सिंपली उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका वेटेज निकाल रहे हैं, है ना. कि 60 होने का वेटेज कितना है? 50. 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 3. 6 3. सो 3%, 30%, आई मीन 3% रिटर्न कैन बी देयर. तो हम क्या कर रहे हैं? ईच ऑफ रिटर्न की उसका वेटेज निकाल रहे हैं. वेटेड एवरेज जिसको बोलते हैं ना, वी आर डूइंग दैट ओनली. RI मल्टीप्लाई बाय PI देन सम ऑफ दिस. राइट, सो दैट इज अ वेटेड एवरेज. तो अब सम करते हो तो आपको ऑल टुगेदर मिल जाएगा कि मिनिमम इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, irrespective of the situation. Right, so this is how we calculate the expected return. अभी आपने ईच प्रोबेबिलिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न तो निकाल लिया. वो एक पीरियड के लिए ही है कि एक महीने के बाद या तो प्राइस होगा 55, 60, 65, 70. तो उसको हम प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसका भी डेविएशन निकालते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी दिस. क्योंकि 60 से प्राइस हो सकता है 55, उसकी प्रोबेबिलिटी है 50%. सो 60 माइनस 55 मल्टीप्लाई बाय इट्स प्रोबेबिलिटी एंड देन डेविएशन फ्रॉम मीन रिटर्न व्हिच वी आर कैलकुलेटिंग. आई होप यू आर गेटिंग. राइट, तो ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, दैट्स व्हाई थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है. 60 से 65 हो गए, उसके चांसेस है 5%. तो मैं जो चांसेस है 5% उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर रही हूँ क्योंकि उतना डेविएशन आने वाला है अभी की प्राइस से.
राइट और ऐसे डेविएशन जितने भी है उसका मैं एवरेज ले रही हूँ, उसका मैं सम अप कर रही हूँ, देन मुझे मिल रहा है टोटल डेविएशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न। हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो रिटर्न नहीं है, जो फ्यूचर में रिटर्न होने वाला है, उसका भी फ्यूचर हम निकाल रहे हैं कि फ्यूचर में अगर रिटर्न इतना आएगा तो इतना डेविएशन उसका एक्चुअल प्राइस से होगा, उसके एवरेज प्राइस से होगा, और तब जाके इसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है तो इतना रिस्क होगा, right? So it is, that's why 2 times we are calculating it with the probability, we are doing all this thing. But इतना कुछ करने के बाद भी we are not 100% sure कि ऐसा ही होगा। ये हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी अज्यूम करके कर रहे, हो सकता है आपने प्रोबेबिलिटी गलत निकाल दी, समझ रहे हो ना। आपने सोचा कि प्राइस 55 होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि कोविड वैक्सीन आ गई है, बट यू डू नॉट नो हाउ मच सक्सेसफुल दिस वैक्सीन इज। हो सकता है जिस बंदे ने वैक्सीन लिया उसको ही बहुत सीवियर कोरोना हो जाए और ऐसे बहुत ज्यादा केसेस आ जाए सामने, है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी हमने जो फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है वो कभी भी 100% नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और रिटर्न कैलकुलेट करने की जो बात की थी वो मार्कोविट्ज ने की थी, जिसका पूरा नाम है हैरी मार्कोविट्ज, राइट, उसका नाम था हैरी मार्कोविट्ज। इस बंदे ने ये जो सिस्टम, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस सब कैलकुलेट करने का सिस्टम था ना, वो 1950 में दिया, 1950 में, બહુ જ હમણાં જ, એને કેટલા વર્ષ છે, 70 વર્ષ। તો એ પહેલા શું થતું હતું, તો એ પહેલા તો છે ને દરેક લોકો પોતાની રીતે ઇન્ડિવિડ્યુઅલ સિક્યોરિટીનું રિટર્ન જોતા હતા કે ભાઈ 50 માંથી 70 થઈ ગયા તો આ સારો સ્ટોક છે, આ 50 માંથી 20 થઈ ગયા તો નથી સારો સ્ટોક, રાઈટ। રિસ્ક કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું નહોતું આવતું, રાઈટ, એમ જ ઇન્ડિવિડ્યુઅલી બધા પોતપોતાની રીતે ગણતા હતા, કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોસિજર નહોતી સ્ટાન્ડર્ડ ડેવિએશન કે વેરિયન્સ કે રિટર્ન કેલ્ક્યુલેટ કરવાની। It was a Harry Markowitz. अच्छा, જે 1950 પહેલા જે ચાલતું હતું ને એને કહેવાતી હતી ટ્રેડિશનલ પોર્ટફોલિયો થિયરી, રાઈટ। આ આપણે શું કર્યું, એક સિક્યોરિટીનું કરીએ છીએ, આવી તમે 10 સિક્યોરિટીના રિસ્ક અને રિટર્ન કેલ્ક્યુલેટ કરો, રાઈટ, 10 વર્ષ માટે, છેલ્લા 10 વર્ષના 10 ડિફરન્ટ સિક્યોરિટીના રિસ્ક અને રિટર્ન કેલ્ક્યુલેટ કરી અને તમે પોર્ટફોલિયો બનાવો, 10 માંથી 5 બહુ સારી રિટર્ન ન થઈ કોઈ કાઢી નાખો, 5 રાખો, 5 માં 25-20% ઇન્વેસ્ટ કરો તો એ તમારો પોર્ટફોલિયો થઈ ગયો। 1950 પહેલા લોકો ઇન્વેસ્ટ કરતા હતા, પોર્ટફોલિયો બનાવતા હતા, but that was a traditional portfolio theory. At that time people used to do what, people were just individually selecting the security, પોતપોતાની રીતે પોતપોતાનો નોલેજ એક્સપિરિયન્સ અપ્લાય કરીને they were taking the decisions. So that was a traditional portfolio theory. 1950 માં Harry Markowitz has researched on this thing, and he gave a standard procedure to calculate standard deviation and variance. એને કીધું કે રિસ્ક બે ટાઈપના હોય, સિસ્ટમેટિક રિસ્ક એન્ડ અનસિસ્ટમેટિક રિસ્ક। સિસ્ટમેટિક રિસ્ક છે એને આપણે અવોઇડ નથી કરી શકતા, અનસિસ્ટમેટિક રિસ્ક છે એને અવોઇડ કરી શકીએ છીએ ડાયવર્સિફિકેશનથી। સો ડાયવર્સિફિકેશન કેવી રીતે કરવાનું, બે એકબીજાથી નેગેટિવલી કોરિલેટેડ સિક્યોરિટી હોય એની સાથે, એટલે નેગેટિવલી કોરિલેટેડ સિક્યોરિટી એટલે શું કે બે ડિફરન્ટ સેક્ટરની સિક્યોરિટી, જેમ કે સપોઝ અત્યારે ઇલેક્ટ્રિક કાર આવવાનું વિચારી રહ્યા છે ને, ઇલેક્ટ્રિક કાર અમુક કન્ટ્રીઝમાં આવી બી ગઈ છે, આઉટ ઓફ એશિયા, આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા સમવેર। તો હવે આપણે એવું વિચારીએ છીએ કે જો ઇલેક્ટ્રિક કાર ફ્યુચરમાં આવશે તો પેટ્રોલ અને ડીઝલ વાળી કારનું સેલિંગ ઓછું થઈ જશે, કેમ કે ગવર્મેન્ટ બી ઈચ્છે છે કે હવે પોલ્યુશન ઓછું થાય। તો પેટ્રોલ અને ડીઝલ કાર વેચતી કંપનીના નેગેટિવલી કોરિલેટેડ શેર કયા થયા, ઇલેક્ટ્રિક કાર વેચતી કંપની, કેમ કે કાર તો માણસની રિક્વાયરમેન્ટ રહેવાની જ છે, રાઈટ, આઈધર પેટ્રોલ અને ડીઝલ અથવા તો ઇલેક્ટ્રિક। તો જો પેટ્રોલ અને ડીઝલ કારનું સેલિંગ ઓછું થશે, પરચેસિંગ ઓછું થશે, तो શું વધારે પરચેસ થશે, वी विल बी परचेजिंग, क्या चीज हम सबसे ज्यादा परचेज करेंगे, इलेक्ट्रिक कार। तो ये दो कंपनी के शेयर अगर आप लेके रखते हो तो ये क्या हो गया, नेगेटिवली कोरिलेटेड शेयर्स हो गए। अगर पेट्रोल डीजल की कार ऐसे ही बिकती रही और इलेक्ट्रिक कार फेल हो गई तो आपको पेट्रोल डीजल की कार के जो शेयर्स है उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। इफ ये नहीं हुआ, पेट्रोल और डीजल के कार की सेलिंग बंद हो गई तो बट ऑब्वियस इलेक्ट्रिक कार लोग खरीदना चालू कर देंगे, देन दोज शेयर्स विल हैव अ पिक इनटू द प्राइसेस। तो ये चीज क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिवली कोरिलेटेड शेयर्स।
मार्कोविच ने बोला कि नेगेटिवली, परफेक्टली नेगेटिवली कोरिलेटेड शेयर्स से आप पोर्टफोलियो बनाओगे एंड देन व्हेन यू विल कैलकुलेट रिटर्न एंड रिस्क इन दिस वे, रिस्क कम आएगा, रिटर्न ज्यादा आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपको वेटेज भी डिसाइड करना है। वेट डिसाइड करके व्हेन यू विल मेक दिस पोर्टफोलियो यू विल हैव लेस रिस्क एंड मोर रिटर्न। ऐसा नहीं हो सकता कि लेस रिस्क मोर रिटर्न, बट एक्चुअल रिस्क पे आपका रिटर्न बढ़ जाएगा या तो फिर सेम रिटर्न पे आपका रिस्क घट जाएगा, कम हो जाएगा। सो दिस इज द मार्कोविच थ्योरी। ठीक है, अच्छा अभी हम क्या करेंगे, हम एक दिस, आज तो आई गेस लेक्चर इज ओवर, राइट? सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कैलकुलेट मोर सम्स ऑफ रिस्क, एक्सपेक्टेड रिस्क, प्लस आई हैव गिवन यू असाइनमेंट। तो अब एक सम किया है उसके बेस पे आप असाइनमेंट भी कर कीजिएगा। ये चीज ऐसी है जो आपको प्रैक्टिस से ही आएगी। इवन दो वी हैड कैलकुलेटेड द सेम इन द सिक्योरिटी एनालिसिस लास्ट ईयर दिस टाइम ओनली, but you couldn't even recall it, right? So I want you to be very much clear about the concept, thorough with the concept. कहीं पे ऐसा है तो बुक में लिख लीजिए कि ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आई गेस आई हैव अ लेक्चर टुमारो। नो, आई डू नॉट हैव अ लेक्चर। अभी नेक्स्ट लेक्चर मंडे या ट्यूसडे को ही होगा। उस टाइम पे हम ज्यादा सम करेंगे एक्सपेक्टेड रिस्क के, एंड वन सम ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न वी विल कैलकुलेट, राइट? सो अभी हम जाएंगे इसके बाद पोर्टफोलियो थियोरीज पे। जो स्टैंडर्ड थियरी है वो है मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, जो 1950 में मार्कोविच ने दी थी। उसके बाद से आज तक 70 इयर्स में बहुत सारी अदर थियरीज आ गई है, बट पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न स्टिल इज कैलकुलेटेड थ्रू मार्कोविच थियरी ओनली, राइट? उसके बाद 50 थियरी आई है, बट स्टिल वी यूज दिस थियरी ओनली टू कैलकुलेट रिस्क एंड रिटर्न। तो आपका 5th मॉड्यूल जब आएगा उस टाइम पे हम करेंगे कि डिफरेंट ऑथर की दी हुई डिफरेंट थियरी से हम पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, कल पोर्टफोलियो थियरी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट वीक में। तो वो होगा मार्कोविच पोर्टफोलियो थियरी, उसको मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी भी बोलते हैं, एमपीटी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी या मार्कोविच पोर्टफोलियो थियरी, बोथ ऑफ देयर नेम ऑफ एमपीटी, राइट? सो दैट वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग, क्योंकि वो बेसिक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो एवरीबडी इज यूजिंग दैट, सो हमें बेसिक तो सीखना पड़ेगा। उसके बाद वी विल लर्न फ्यू न्यू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग पोर्टफोलियो रिस्क एंड रिटर्न। Thank you very much. Have a nice day to all of you. I'm just taking your attendance. Give me 5 minutes and then we will be free to leave the class. Those who are offline can leave. But what's the urgency? अच्छा, आशा, हाँ कोई बात नहीं, हो सकते हो। काजल, is Kajal present in the class? Yash, प्रेजेंट मैम। Viraj, Vidya, Yes, ma'am. Kavita, Sneha, is Sneha present? ma'am. Yeah. Bhavya? Yes, ma'am. Yes, Sneha, I marked you present. Bhavya present. Chitra? Charmi? Chandni? Yes, ma'am. Joy? Yes, ma'am. Chandni, you marked present. Joy? Yes, ma'am. Primi? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ishita? Yes, ma'am. Dhananjay? Dhruvi? Yes, ma'am. Shivangi? Sagar, Leela? Yash? Aditi? Yes, ma'am. Ashwini? Yes, ma'am. Bhavya Kamdar? Shivangi? Kavita? And Kajal. These 4 are absent. Thank you very much. Have a nice day to all of you. You may start disconnecting yourself from the lecture.